So answer your roll calls quickly. Aman Visaria, Amaya Pujara, Aryan Shah, Bhumi Shah, Danya Sangvi, Devam Bora, please be quiet. Dharmil Shah, Risha Shah, Dhey Mehta, Felisha, Rishi, Janvi, Jinay Gala, Jinay Shah, Jia Mehta. Where's Jia Mehta? Hayali, Khushi Banushali, Khushi Ratra, Mahek Shah, Manav Doshi, Manav Davda, Man Gogri, Manthan Thakkar, Nihar Mehta, Palash Anam, Paribusa, Paridhi Shah, Parth Chheda. बात किया कंप्लीट सब कुछ समझ में आया? संभाल Parth Chheda, Paul Gala, Prisha Shah. There is Prisha Shah. Priyansh Gulecha, Riddhi Khabia, Riya Malde. Riya Malde is not here, right? Riyan Makwana, Shlok Gori, Shruti Shah, Siddhi Vora, Tiana Shah, Veera Jogi, Vishwavardhan, Divan Shah, Yashraj Banusha. Anyone from another batch? Aryan Shah. और कोई दूसरा बैच वाला जिसका नाम बोला नहीं है ऐसा कोई? Felisha it is. Anyone whose name hasn't been called? Jia Mehta. Very late. Fiona. Fiona is a name. Felisha, Fiona, Rishi. जिन्हें किधर गया है? Anyone knows? Okay, now listen, all of you. होमवर्क किया? 3 ही ट्रांजैक्शंस थे, राइट? 4. पहला तो था received dividend by check. So what are the 2 accounts? Bank account and dividend account. Bank account and dividend account. Why not cash? Check है. Check है तो one account is bank and one account is dividend. What is dividend for the business? Income. Dividend is income. So bank and dividend. Bank is asset. Personal. Traditional में कर रहे थे. Bank is personal and dividend is nominal. Bank के लिए क्या रूल अप्लाई करोगे? Debit the receipt. Bank is receiving the dividend.
right? And dividend के लिए nominal, so credit all incomes and gains. So bank debit the receiver and dividend credit all incomes and gains. So bank debit and dividend credit. Modern में क्या है bank? Bank is asset. In modern, bank is asset. And what is dividend? Income. So bank asset बढ़ा तो debit, dividend income बढ़ा तो credit. बराबर? Then the next one is paid for repairs to Vasant. So what are the two accounts? Cash and repairs. Cash and repairs. Cash is real. Repairs are nominal. Real account. Credit what? Goes out. Cash is going out. And repairs, debit all expenses and losses. Because repairs are expense. So repairs are expense and cash goes out. Finally repairs account debit and cash account credit. Right? And in the modern concept, repairs being expense बढ़ा तो debit and cash being asset घटा तो credit. बराबर? Paid for salary to Ram. So what are the two accounts? Salary and cash. Ram का नाम important नहीं है. Whenever you pay any expense or receive any income, party's name must be ignored. So salary and cash. Salary is nominal and cash is real. So salary debit all expenses and losses. Cash is credit what goes out. Finally salary debit and cash credit. And in modern, salary expense बढ़ा तो debit, cash asset घटा तो credit. बराबर है? And finally, you have interest on Kajal's loan. You can write interest account and cash account, but better है मैंने बोला था interest on Kajal's loan लिखोगे तो better है. So interest on Kajal's loan account and cash account. So interest on Kajal's loan and cash. Interest being nominal, debit all expense and loss. Cash being real, credit what goes out. So interest is expense and cash goes out. Interest debit, cash credit. Yeah, interest on Kajal's loan debit and cash credit. खाली interest भी चलेगा. Better है कि interest on Kajal's loan debit. ठीक है? And modern में interest is expense and cash is asset. Interest expense बढ़ा तो debit, cash asset घटा तो credit. बराबर? So any doubts? These four? Yeah. Vasant came नहीं आ रहे. Because the reason why you're giving money to Vasant is what? Because of repairs. Vasant का नाम तब आएगा when you are settling Vasant maybe for purchasing of goods. Purchase किया है और settle कर रहे हो तो Vasant आएगा. या लोन वोन के लिए Vasant लोन. Otherwise reason पीछे repairs है. मैं 10 लोगों को repairs का पैसा दे रहा हूँ. तो 10 का नाम लिखूंगा तो अकाउंट फोकट के बढ़ते जाएंगे. रीजन क्या है? रिपेयर्स एक्सपेंस है. इलेक्ट्रिसिटी तुम पे कर रहे हो तो अडानी को पे कर रहे हो, टाटा को पे कर रहे हो, रिलायंस को पे, क्या फर्क पड़ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी इज योर एक्सपेंस, दैट्स व्हाई यू आर पेइंग इट, राइट? सो व्हेनेवर यू पे एनी एक्सपेंस और रिसीव एनी इनकम, पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं. द रीजन ऑफ ट्रांजैक्शन इज एक्सपेंस. वसंत का नाम कब आएगा? जब यू आर सेटलिंग वसंत फॉर बाइंग गुड्स, दैट टाइम इट इज प्रॉपर वसंत. तभी वसंत को ही पैसा जा रहा है. गुड्स तो पहले खरीद लिया. हाँ जी, वसंत पर्सनल होगा ना. वसंत पर्सनल होगा बट अभी यूज नहीं करना. जब सिर्फ वसंत को पैसा दे रहे हो, फॉर पहले गुड्स आ गए और फिर पैसा दे रहे हो, तो बस तुमने कैश में गुड्स खरीदे तो क्या अकाउंट है? परचेज एंड कैश. फिर वसंत का नाम नहीं आता. क्यों नहीं आता? माल खरीदा, पैसा दिया. पैसा क्यों दे रहे हो? माल आ गया उसको. तो परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम वसंत, इट इज स्टिल परचेज एंड कैश. एक्सपेंस बढ़ा, कैश घटा. So whenever you pay any expense or receive any income, party's name is not important. तो the context का transaction का हिस्सा है ही नहीं. अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं the first big topic of this year, which is like around 35% of your 11th standard portion, 35 to 40%. 2 चैप्टर खतरनाक बड़े राक्षस है 11th के. The first topic, this is not the first topic, actually it is the third topic, journal. Journal is the third topic we are doing, we are going to start today. But the biggest topic of this year and the base of entire bookkeeping and accounting. आने वाले जितने सालों का अकाउंट्स आप पढ़ने वाले हो, उसका कोर बेसिस जर्नल. उसका कोर बेसिस, ये जर्नल आएगा तो लेजर आएगा.
लेजर में कॉपी करना है बताया था। जर्नल और लेजर आएगा तो ट्रायल बैलेंस आएगा, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आएगा तो फाइनल अकाउंट्स आएगा, सब लिंक्ड है। तो बोलते हैं जो ट्रेन है उसका इंजन है दैट इज जर्नल, द फर्स्ट बिग टॉपिक। और इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना इसको, कोई भी जर्नल एंट्री कहां से भी आ जाए, जर्नल एंट्री मतलब बेसिकली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं से भी आ जाए यू कैन रिकॉर्ड, वंस यू आर थ्रो विद दैट, फिर आगे के सारे टॉपिक्स आपको इजी लगने लगेंगे, खुद पता चलेगा। तो जर्नल सबका माई बाप, बेस, रूट, पिलर ऑफ द एंटायर 11th स्टैंडर्ड. Is it clear? Second important, most important topic at the last end of the year, you'll find final accounts. दो बाप टॉपिक्स है, जर्नल एंड फाइनल अकाउंट. इज इट क्लियर? बीच वाले सारे मैनेजेबल हो जाएंगे अगर जर्नल अच्छे से करोगे तो. ठीक है, तो शुरू करते हैं जर्नल के साथ. ओके, सब लोग नोटबुक ले लो. एक साइड पे फॉर्मेट बनाना है, वन सिंगल साइड. दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ जर्नल. Okay, this is how a journal will look like. This is your margin. You can use the margin. Okay, ये margin में आपका आ जाएगा डेट या फिर सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस. ऊपर हेडिंग देनी है इन द जर्नल ऑफ, इन द जर्नल ऑफ, इन द जर्नल ऑफ, whatever is the name. अभी फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो इन द जर्नल, डेबिट के बाद रुपीस का साइन है, क्रेडिट के बाद भी रुपीस का साइन. इन द जर्नल ऑफ श्री अनुज. Why did I write Shri Anuj in the first term? Who is Anuj? Owner. The owner. How do you recognize owner? See the first one. Shri Anuj invested in business. Can you see that? Shri Anuj ने business में invest किया, मतलब Shri Anuj is the owner. So either you write business name or you write owner's name. Both are fine. Okay. So in the journal of Shri Anuj या in the books of Shri Anuj journal entries ऐसे भी लिख सकते हो. शुरू करो. In the journal of Shri Anuj, in the journal of Shri Anuj, in the journal of Shri Anuj, yeah, in the books of Shri Anuj journaling. एक साइड पे ड्रॉ करना है. जितने साइज का आपका डेट का कॉलम होगा वही साइज के दो अमाउंट कॉलम होंगे. ज्यादा बड़े मत बनाना, ये डेट के साइज की बनाने. मेजॉरिटी पार्ट पर्टिकुलर्स के लिए छोड़ना है, पर्टिकुलर्स में डिटेल आएंगे आपके. सॉरी, LF पतला सा, LF विल बी वेरी थिन. LF में कुछ लिखने वाले नहीं है. LF क्या है पता है? LF लेजर फोलियो. फोलियो मीन्स पेज नंबर. और जर्नल में LF क्यों होता है? क्रॉस चेक. और लेजर में क्या होता है? JF, जर्नल फोलियो. दैट्स फॉर क्रॉस चेक. ओके, दिस इज हाउ योर फॉर्मेट विल लुक लाइक. सी, क्लियर? परफेक्ट अलाइनमेंट. पर्टिकुलर के लिए सबसे ज्यादा जगह छोड़नी है. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट. LF अगरबत्ती जितना पतला रहे, कुछ नहीं है उसके अंदर. ओके, वेरी थिन कॉलम. पेज नंबर्स होते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम में पेज नंबर नहीं दिए जाएंगे, तो वो कॉलम खाली रहने वाला है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेट आपको बनाना है, दैट्स इट. बाकी कुछ काम धंधा नहीं है. ओके, इन द जर्नल ऑफ सो एंड सो, ऊपर लिखना है हेडिंग. वो मार्जिन के ऊपर लिख सकते हो आप, इन द जर्नल ऑफ सो एंड सो या इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो जर्नल. श्री अनुज का जर्नल कर रहे हैं, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं. हमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? बिजनेस. बिजनेस का नाम है तो बिजनेस का नाम लिखो, नहीं है तो ओनर का नाम लिखो. ये सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली ओनर के नाम से जाना जाता है. ओके, अभी जर्नल कर रहे हैं फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट. व्हाट इज जर्नल? फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री. एनी ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस इज फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल. बराबर है? तो फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री, प्राइम बुक ऑफ एंट्री, प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री भी बोला जाता है. जर्नल लेजर बोथ आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक. मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेन बुक्स. और इसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है?
डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकली यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, डेट वाइज. याद है, ये भी हमने किया था डिस्कस. अभी हाउ टू गो अबाउट विद जर्नल. सुनो, ट्रांजैक्शन पढ़ना, वही ट्रांजैक्शन है जो आपने टेबल में किया, मोटा मोटी सिमिलर वाले दिखेंगे और थोड़े डिफिकल्ट भी आएंगे. जैसे कि श्री अनुज स्टार्ट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, श्री अनुज इन्वेस्टेड इन बिजनेस. तो व्हाट आर द टू अकाउंट्स? कैश एंड कैपिटल. ये पता चल गया. अब दिमाग में सोचना है, आप ट्रेडिशनल से सोचो, मॉडर्न से सोचो, आपकी मर्जी. आपको सब दिमाग में सोच के कंक्लूड करना है व्हाट शुड बी डेबिटेड, व्हाट शुड बी क्रेडिटेड. बस ये आंसर लाना है. जो हम लोग टेबल में लिखते थे, रूल, देन रीजन, देन अकाउंट डेबिटेड, देन अकाउंट क्रेडिटेड, वो सब अभी दिमाग में कर लेना और अराइव एट द फाइनल आंसर. व्हाट शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट शुड बी क्रेडिटेड. डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट फाइनल करना है. Cash debit and capital credit. If you go by traditional, so cash comes in, debit what comes in, capital is the giver, owner is the giver. If you go by modern, cash asset बढ़ा तो debit, capital बढ़ा तो credit. कोई भी मैं सिस्टम यूज करो जो आपको इजी लगता है, ट्रेडिशनल या मॉडर्न, एंड अराइव एट द फाइनल आंसर. व्हाट शुड बी डेबिटेड, व्हाट शुड बी. लेकिन बिना रूल रीजन के आगे बढ़ना नहीं है. सुना, फ्रेंड बोल रहे हैं इसके लिए कैश डेबिट कैपिटल, हाँ नहीं. थिंक इन योर माइंड व्हाई इट इज डेबिटेड, व्हाई इट इज क्रेडिटेड. स्टोरी बैठना चाहिए, मॉडर्न में बैठना चाहिए या फिर ट्रेडिशनल में बैठना चाहिए. इज इट क्लियर? सो फर्स्ट वन इज कैश एंड कैपिटल. ऑल्सो एग्री. 1st August, डेट कब हो रही है? 1st August 2020. नाउ देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग डेट्स. वन, जैसे आप नॉर्मली लिखते हो 1/8/2014, ऐसा लिखो. 2/8/2014, 3/8/2014, या फिर ऑन टॉप यू कैन राइट August 2014 और फिर 1st, 2nd, 3rd, 4th. घड़ी घड़ी अगस्त लिखने की जरूरत नहीं है. यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो August 2014 और फिर 1st, 2nd, 3rd and so on and so forth. That is another way of writing dates. Both are fine, any way you do. Okay, here I am following the simple straightforward method. अपना डेट का 1/8/14. What should be debited? Cash. What should be credited? Okay, cash आया, capital owner is the giver. How to pass an entry? ध्यान से देखना फॉर्मेट. कैश एकदम मार्जिन से चिपका के, कैश अकाउंट AC डेबिट एकदम यहाँ पे LS से चिपका के, DR. कैश अकाउंट डेबिट. ओके, ये दिख रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, सेम लाइन पे. उसके बाद पैराग्राफ जितना 2-3 लाइन, 2-3 फिंगर का स्पेस छोड़ के, पैरा जितना जगह छोड़ के, टू कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट नहीं लिखना है. दैट इज द फॉर्मेट ऑफ अ जर्नल एंट्री. ओके, टैली वगैरह में करोगे तो क्रेडिट भी लिखते हैं, फिजिकल अकाउंट्स में नहीं लिखते, मैनुअल अकाउंट्स में नहीं लिखते. तो कैश अकाउंट DR. DR स्टैंड्स फॉर डेबिट, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट आर डिराइव्ड फ्रॉम सम लैटिन वर्ड्स. दे वर कॉल्ड एज डेबेरे एंड क्रेडेरे. डेबेरे एंड क्रेडेरे. जैसे जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जूर, फ्रेंच वर्ड जूर. फ्रेंच किया है किसी ने? जूर. डे, बोनजूर, गुड डे. तो जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड jour, and debit and credit derive from Latin words debere and credere. So debere means debit, credere means credit. एकदम क्रक्स में डेबेरे क्रेडेरे का मतलब क्या है? रिसीवर ऑफ द बेनिफिट एंड गिवर ऑफ द बेनिफिट. एकदम कोर तरीके. वैसे अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं होता डेबिट क्रेडिट. एकदम जिस्ट में, एकदम बेसिक लेमैन में समझना. तो डेबेरे मतलब रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, क्रेडेरे मतलब गिवर ऑफ द बेनिफिट. जो रिसीवर था वो डेबेरे, गिवर है वो क्रेडेरे, क्रेडिट. तो वो हमने बना दिया फिर डेबिट और क्रेडिट. तो अभी भी सिस्टम में वही चल रहा है. DR स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट. इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. ये डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है DR, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है CR. अभी एंट्री कैसे करनी है? कैश अकाउंट डेबिट, इट्स नॉट डेबिट, इट्स डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट. नेक्स्ट लाइन पे टू कैपिटल अकाउंट. टू का मतलब है क्रेडिट हो. To is the prefix which shows it has been credited, and DR means it has been debited.
Okay, what is the amount? Sorry, 2 lakhs. 2 lakhs, huh? Zeros check करो. 2 lakhs है अमाउंट, ध्यान से देखना. डेबिट का अमाउंट डेबिट के लाइन में ऊपर लिखना है और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट के लाइन में नीचे लिखना है. 2 लाख 2 लाख, डेबिट का 2 लाख, क्रेडिट का 2 लाख, एंड ऑलवेज योर डेबिट्स विल बी इक्वल टू क्रेडिट्स. उसके बाद हर एक एंट्री का वेरी नेक्स्ट लाइन पे यू हैव टू राइट बीइंग. जो भी सिंपल इंग्लिश में आप ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन कर दो, नो हार्ड एंड फास्ट, खाली बीइंग से स्टार्ट करना है. सो बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड as capital. You can also write cash invested as capital. Being cash introduced by owner as capital. Being cash invested in business. Being capital introduced. Own words में mention करना है. It should just convey the meaning. What is this called as? Narration. Narration was what? A brief explanation of every journal एंट्री इन सिंपल इंग्लिश स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग, क्योंकि ट्रांजैक्शन चल रहा है और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, तो बीइंग से शुरू होना चाहिए. और सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है. नो हार्ड एंड फास्ट रूल, वर्ड टू वर्ड जाना जरूरी. अच्छा सर नरेशन नहीं आ रहा है, जम रहा नहीं है, छापो, क्वेश्चन छापो, जो क्वेश्चन है वही छाप दो, खाली बीइंग करके लिखना. इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट इज नरेशन. नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन नरेशन. इज इट क्लियर? Narration, explanation of every entry. Why do we write narration? Remember? Cross checking. अभी कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल ना, तो ये देख के समझ में आ रहा है कि बिजनेस में कैश आया, तो नरेशन पढ़ के एंट्री बना सकते हो. ऐसा होना चाहिए. ठीक है, इतना समझ लेना. कैश बीइंग कैपिटल. डोंट राइट दिस मच. राइट प्रॉपर, एकदम ऐसे के फॉर्म में भी मत देखो. इट शुड क्रिस्पली कन्वे द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन. समझा? हाउ टू राइट इट, ऑल ऑफ यू गॉट इट. हर एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सेम है. ऊपर डीआर, नीचे 2 करके सीआर लिखने की जरूरत नहीं है. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कर लो कॉपी. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. What else can we write except introduced if we don't want to write? Cash invested in business as capital. Cash invested, capital introduced in business as in the form of cash. Capital introduced in business. Capital invested by the owner. Own words you can mention. नरेशन का टेंशन जरा भी नहीं लेना. वर्ड टू वर्ड होना जरूरी नहीं है. और कुछ नहीं क्लिक हुआ तो छापो क्वेश्चन. क्वेश्चन ही ट्रांजैक्शन है. दैट्स व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग.